Z be the two geometric means between any two positive numbers, then we have to find the value of y cube plus z cube upon x y z. तो हम कोई नंबर ले लेते हैं a and b. तो x इनका अरिथमेटिक मीन है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2. अब y and z are two geometric means, that mean a, y, z और b. a इस तरीके से हो जाएगा. इसका मतलब कि a b इज इक्वल टू y z, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ये कंडीशन होती है जीपी की. और इसका एक कंडीशन होगा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू जेड एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू बी. तो इसको हम वाई से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा वाई क्यूब इज इक्वल टू ए वाई जेड, और इसको जेड से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा जेड क्यूब इज इक्वल टू बी वाई जेड. अब हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हमें फाइंड करना है वाई क्यूब प्लस एक्स जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड की वैल्यू. तो वाई क्यूब को हम लिख सकते हैं ए वाई जेड प्लस जेड क्यूब बी वाई जेड इंटू वाई जेड इंटू एक्स को लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई 2. तो अगर हम वाई जेड ऊपर कॉमन ले लें, वाई जेड कॉमन, तो ये ए प्लस बी होगा, यहाँ पे आएगा वाई जेड इंटू ए प्लस बी, और यहाँ का 2 रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगा. तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा 2. दैट मीन्स वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. Numbers be in the ratio 4:5. There are two numbers are in the ratio. So we start this question by writing, as we are given that the harmonic mean and geometric mean are in the ratio 4:5. So harmonic mean is given by, which is, let this be h, which is equal to twice of ab divided by a plus b, and geometric mean, which is g, is given by under root of ab. Now we are given that it is in the ratio 4:5. So we look at, now we are given that harmonic and geometric mean are in the ratio 4:5. So look at 2ab divided by a plus b into under root ab is equal to 4 divided by 5, which will give us under root ab, cancel out this, will get under root ab, which will give us 2 under root ab divided by a plus b is equal to 4 by 5, which will give us 10 into under root ab is equal to 4 into a plus b. Now we can write this equation also as 10 by 4 is equal to a plus b divided by under root ab, which will give us 10 by 4 is equal to under root a by b plus under root b by a. Okay, so now if you let, so I have write this equation as a by under root ab plus b by under root ab. So from this equation we have got this equation as under root a will cancel out under root a, so this is under root a, this under root b only. Okay, so this will cancel out under root b. So this equation we have got this equation. Now we know that, now we will let under root ab is equal to t. Okay, so let, which will give us under root b by a is equal to 1 by t. Okay, so now we can write t plus 1 by t is equal to 5 by 2. So I put value of t 1 by t, and this is 5 by 2. Okay, now we're taking the LCM, we'll get t square plus 1 is equal to 5 by 2t, which will give us t square minus 5 by 2t plus 1 equal to 0. Okay, so now from this equation by taking LCM we will get t square plus 1 by t is equal to 5 by 2, which will give us 2t square plus 2 minus 5t equal to 0. Okay, so now we can write this equation as by, so we can, this equation is 2t square minus 5t plus 2 is equal to 0. Now by factorizing we'll get 2t square
minus 4t minus t plus 2 equal to 0. By taking 2t common here we'll get t minus 2, and by taking minus 1 common here we'll get t minus 2 equal to 0, which will give us 2t minus 1 is equal to into t minus 2 is equal to 0, which will give us value of t 2t minus 1 is equal to 0, or t minus 2 equal to 0, which will give us t is equal to half and t is equal to 2. So now we have let under root ab is equal to t. We put value of under root ab, under root a by b is equal to 1 by 2, or under root a by b equal to 2. So by taking square on both sides we'll get a by b is equal to 1 by 4, or a by b is equal to 4. So value of sides will be either 1 by 4 or 4. So this two can be the answer. ठीक है, एंड m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमें बोला है कि अगर x की पावर n इंटू वाई की पावर m डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 2n इंटू 1 प्लस वाई की पावर 2m मल्टीप्लाई करें तो हमेशा लेस देन 1 बाय 4 आएगा। तो हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। तो अगर हमें किसी भी उसका लेना होता है फॉल्स प्रूफ करने के लिए, तो हमें कोई भी एक ऐसी सिचुएशन चाहिए होती है जिसमें वो कंडीशन प्रूफ ना हो रही हो, तो उससे फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई सी भी कंडीशन लेते हैं। लेट अस से कि मैंने x और y को 1 ले लिया एंड m एंड n को क्या ले लिया 2। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 1 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 की पावर 2 इंटू 2। तो ये कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 which is equals to 1 by 4. अब 1 by 4 is not less than 1 by 4, it is equals to 1 by 4. तो ये क्या आ गया कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। ठीक है, तो therefore the given statement is false। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू। x प्लस लॉग बेस x a इज 2। तो हमें बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा लेट एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस एक्स ए। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ए बेस एक्स प्लस 1 अपॉन लॉग ए बेस एक्स। ठीक है, तो अब मानता हूँ लेट जी वाई इक्वल्स टू ए फंक्शन मानता हूँ मैं इसको y प्लस 1 अपॉन वाई। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि लॉग ए एक्स को मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए y बोलता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट वाई माइनस 1 अपॉन अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है और ये प्लस 2 है यहाँ पे, तो दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि कभी 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो जी वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब y की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। y की वैल्यू 1 होगी मतलब यहाँ पे y की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 0 होगी, मतलब x की वैल्यू a होगी। ठीक है, x की वैल्यू a, y जब इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, ये इक्वल टू 2 कब आएगा व्हेन y इक्वल टू 1, और जब y 1 होगा तो x वैल्यू a होगी, पर हमें क्या दिया हुआ है कि x a से बड़ा है, तो ये कभी इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ सीधी बात है log a x प्लस 1 अपॉन log a x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन इज 2 बोला है, बट ये वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती, ये वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 नहीं है। ठीक है, तो बस इसलिए फॉल्स हो गया। और ये भी दे रखा कि b बाई ए भी एक इंटीजर है। ठीक है, अगर ए बी सी तीनों ही जीपी में है, ठीक है, तो ए बी सी का और जो ए बी सी का अरिथमेटिक मीन है वो b प्लस 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो
बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू आर। क्यों? क्योंकि तीनों ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। इसका मतलब बी इक्वल टू ए आर हो गया और सी इक्वल टू ए आर क्यूब, ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर क्यूब हो गया, ठीक है, ए आर स्क्वायर हो गया। अब मुझे दे रखा कि ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन बी प्लस 2 है, ठीक है। अब मैं तीनों को ही ए से डिवाइड करता हूँ, इस दोनों साइड को ए से डिवाइड करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 इंटू बी बाई ए प्लस 6 बाई ए, 2 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब b बाई ए की वैल्यू कितनी थी, r, और c बाई ए की वैल्यू कितनी होगी, r स्क्वायर, पे हो जाएगी 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 3r प्लस 6 बाई ए, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास r जो है ना वो रैशनल है, ठीक है, और ये भी है कि यार अगर मैं a की कुछ वैल्यू रखता हूँ तो उस हिसाब से r की अलग अलग वैल्यू आएंगी। अगर मैंने a की वैल्यू 6 रखी तो r की वैल्यू आएगी 0,2, 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। अगर r 2 है तो a, b और c क्या बन जाएंगे मेरे, 6, 12 और 24, ठीक है। इस हिसाब से a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 अपॉन a प्लस 1, ये जो वैल्यू आएगी मेरी 36 प्लस 6 माइनस 14 अपॉन 6 प्लस 1, ये आएगी 4 के बराबर। ये है मेरा आंसर। इनमें से आप कोई भी एक वैल्यू, इनमें से एक वैल्यू पुट करके देखो और फिर ऑप्शन में से चेक करो, ठीक है। यही है इसका तरीका। ओके गाइस, थैंक यू। हेलो गाइस, हाउ आर यू, कैसे हो? तो इस क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि ये ना मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, मुझे इनकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इनका जो सम है उस सम की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और मेरे पास दिया हुआ है कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं एक इनइक्वालिटी कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक कर देता हूँ, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ठीक है। ये एक इनइक्वालिटी होती है, तो मैं इसका ए एम निकालता हूँ सबसे पहले। तो ये आएगा ए पावर माइनस 5 प्लस ए पावर माइनस 4 प्लस ए पावर माइनस 3 प्लस ए पावर माइनस 3 प्लस 1 प्लस ए पावर 8 प्लस ए पावर 10 बाय 8, ठीक है। ये ना 3 नहीं है, ये असल में ए पावर माइनस 3 है, ठीक है जी। ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन का साइन है, ए पावर माइनस 5 इंटू ए पावर माइनस 4 इंटू ए पावर माइनस 3 इंटू ए पावर माइनस 3 इंटू 1 इंटू ए पावर 8 इंटू ए पावर 10 पावर 1 बाई 8। ये सब को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा और ये होगा फिर 1 की पावर 1 बाई 8 यानी कि 1। अब यहाँ 1 है और यहाँ 8 है तो 8 जो है सीधा यहाँ जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा और मेरे पास इक्वेशन बनेगी कि ए पावर माइनस 5 प्लस ए पावर माइनस 4 प्लस ए पावर माइनस 3 प्लस ए पावर माइनस 3 प्लस 1 प्लस ए पावर 8 प्लस ए पावर 10 इज ग्रेटर, ये 10 है, इज सॉरी ए पावर 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। और अगर आप देखें तो इसकी मिनिमम वैल्यू 8 है, तो हमारा आंसर है 8। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो 8, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू।